Hello bachcho, this is your 8th NCERT history video class and today we are starting 4th chapter Tribals, Decus and the Vision of a Golden Age. In the previous chapter we have studied that how the company rule was expanded, how the company has become Diwan, how it has got the Diwani rights and how does it affect the life of the farmers, the cultivation and all the other things and how the movement was started. Similarly, in this chapter we are going to study that how the tribals were affected, what problems they were facing, what problems and what solution they decided, and how the decus that were known as the outsiders were forcing these tribal communities. Okay, so let's start reading. In 1895, first of all we are going to study about a person namely Birsa. Let me change the color first. Okay, in 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur. That means this is the story of the Jharkhand, where a place is there, Chota Nagpur. Okay, you must have heard about the Chota Nagpur. So people said he had miraculous power. That means he was having magical powers. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God has appointed him to save his people from the trouble. That means there was a thinking, there was a thought that Birsa was a person of God. He was an angel, we can say. That means he was there to protect the people from different troubles like the cultivation problems, whatever they were having. जो भी problems उनको होती थी, चाहे उनकी बीमारी हो या फसलों की problem हो, Birsa was there to sort out all kind of problems. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and he had come to solve all their problems. यानी कि जितने भी आउटसाइडर्स थे, डिकूज थे, तो उन सब से बचाने के लिए, क्योंकि उस समय जो कम्युनिटीज़ थी, हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो कंपनी रूल था वो धीरे धीरे लोगों को अपना स्लेव बनाता जा रहा था, गुलाम बनाता जा रहा था। और कंपनी रूल के साथ साथ ही जो लोकल चीफ्टेंस थे, मुखिया थे लोकल, वो भी क्या कर रहे थे, इन लोगों को सप्रेस कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। सो देयर वाज बिरसा टू सॉर्ट आउट ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोटेक्ट ऑल दी कम्युनिटीज़। तो सभी लोग जो है उसके फॉलोवर बन गए थे, उसको भगवान मानते हुए सभी लोगों ने उसका फॉलो करना उसको शुरू कर दिया था। ओके, सो बिरसा क्या है, बिरसा की अगर हम बात करें, बिरसा जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो वो किससे बिलोंग करता था, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था, दैट वाज मुंडा। Okay, in this chapter you are going to you will be familiar with many kind of communities of different areas. आपको अलग अलग areas की जो वहाँ की आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको पता लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने माइंड में जो इंडिया का मैप है उसको लेकर के चलना है, और साथ ही साथ ये जो भी कम्युनिटीज़ आप जो नेम पढ़ते जाएंगे उनको वहाँ आपको लोकेट करना है। ओके, So Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur. But his followers included other tribals of the region. भाई जो जिसे भगवान मान रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो उस एरिया के, जिस एरिया में वो रह रहा है, सिर्फ उसी के लोग उसको फॉलो करेंगे। तो जो भगवान है उसको तो सब लोग फॉलो करते हैं ना। तो जो आसपास के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो भी उनको फॉलो करती थी, जैसे संथाल्स की बात करें या अरोहंस की बात करें, ये सभी उनको फॉलो करते थे। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. क्योंकि उस समय जो कंपनी का रूल था वो बहुत एक्सप्लॉइटिंग था, जो उनके फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थी, जो टैक्सेस वो इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे थे, जो फोर्सफुली उनसे काम करवाया जा रहा था, इन सब से, और जो सबसे बड़ा डैप ट्रैप में वो फंसते चले जा रहे थे, इन सब से जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग थे अलग अलग एरियाज़ में, वो परेशान थे और वो इन सब से आज़ादी पाना चाहते थे। Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. क्यों? क्योंकि जो उनका तरीका था, लाइफस्टाइल जो था उनका, अब वो उसको फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि जैसा कंपनी ने रूल बनाया, जैसे उनको चाहा, उन्होंने वैसा ही करना पड़ा। यानी कि जो उनकी आज़ादी थी वो ख़त्म होती चली जा रही थी, जो उनके रिचुअल्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, वो सब ख़त्म होते चले जा रहे थे, और इन सब से वो परेशान थे। What problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as decus? अब decus किनको कहा गया? जैसे हम कहते हैं ना डाकू, डाकू कौन होते हैं? लुटेरे, जो बाहर से कहीं से आते हैं और एक पूरे एरिया को लूट कर चले जाते हैं ना, ख़त्म कर देते हैं, तो वहीं से ये वर्ड बना है decus. And how did they enslave the people of the region? यानी कि ये जो बाहर के लोग थे, आउटसाइडर थे,
ये किस तरीके से किसी एरिया में अटैक करते थे और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ब्रिटिश रूल के अंदर हो रही थी, उनकी लाइफ जो चेंज हो रही थी, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ाते हैं रीडिंग अपनी। You must have your book with you so that you can continue reading with me. You have read about tribal societies. Last year, most tribes and customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmans. अब आपने अपनी जो पिछली क्लास है 7th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था कि जो ब्राह्मण जो कम्युनिटी थी, उनके जो भी रिचुअल्स थे, कस्टम थे, बाकी सब जो कम्युनिटीज थी उनसे काफ़ी अलग थे। These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics to a caste societies. यानी कि उस समय तक, जिस समय की हम बात कर रहे हैं ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, उस समय तक कोई बहुत बड़ा जो सोशल डिवीज़न है या कास्ट सोसाइटीज़ हैं वो उस वक्त नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जो थे उनमें हायरार्की ज़रूर थी, ठीक है। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, यानी कि वो सब जो एक कम्युनिटी के लोग थे वो एक तरह के ही जो हैं जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करते थे। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। तो वहाँ पे कास्टिज्म नहीं था, सोसाइटी जो है सोशल डिवीज़न के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी जो डिफरेंसेस हम कहेंगे वो तो शुरुआत से ही थे। चाहे वो सोशल डिफरेंसेस की हम बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात करें कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, कोई जैसे हम अलग अलग कम्युनिटीज़ हमने पढ़ी हैं, जैसे क्षत्रिय थे, वैश्य थे और ब्राह्मण थे, है ना, तो शूद्र थे। तो ये अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं सोशल बेसिस पर डिवाइडेड थी, लेकिन जैसा डिवीज़न धीरे धीरे टाइम पीरियड में आता रहा वैसा उस समय में नहीं था। क्लियर? अपनी बुक आप साथ में खोल के रखें और साथ के साथ रीडिंग लगाते रहें। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द ट्राइबल ग्रुप्स वर लिविंग एट दैट टाइम, यानी कि उनकी जो लाइफ प्रैक्टिसेस थी वो क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो लोग थे उनमें से झूम कल्टिवेटर्स थे। झूम कल्टिवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन। एंड व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन? यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड शिफ्टिंग। व्हाट डज इट मीन? शिफ्ट होना। शिफ्ट होना मतलब दैट मीन्स इन अ पर्टिकुलर सीजन दिस फील्ड, सपोज दिस इज द फील्ड, इस फील्ड में जो है एक क्रॉप जो है वो लगा दी जाती है, ठीक है। जब ये सीजन में क्रॉप पूरी राइपन हो जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है, उसके बाद इसके जो स्टॉक्स हैं हार्वेस्ट करने के बाद जब ये फसल है, सपोज इसकी बालियां हैं ना, तो ये यहाँ से जो ग्रेन्स है वो निकाल लिए जाते हैं और जो स्टॉक है यानी कि जो तना है वो यहीं पर रह जाता है। तो इसका क्या करते हैं, इसको इसी खेत में क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है और इसकी जो राख है इस खेत में फैला दी जाती है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, राख में मेनली क्या होता है, पोटाश होता है। क्लियर? तो ये जो पोटाश है ये इस मिट्टी में वापस मिल जाता है और नेचुरली जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग्रो होने लगते हैं। भाई एक समय जब इसमें फसल हो गई है तो मिट्टी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस फसल ने, इन पौधों की जड़ों ने कंज्यूम कर लिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स को वापस रीजनरेट करने के लिए, वापस रिकवर करने के लिए इस एरिया को, लैंड एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है और किसी दूसरे पैच पर जाकर फिर से खेतीबाड़ी की जाती है। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्लियर? तो कुछ जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, झूम कल्टीवेटर्स थे, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करते थे, फॉलो करते थे। वंस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स, से देखो, अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टीवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि एक खेत पर, एक जमीन के टुकड़े पर जब कल्टीवेशन कर लिया जाता था, फसल ले ली जाती थी, तो उसको कई सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस एरिया के, उस जमीन के फिर से रिकवर किए जा सके। ओके, तो आप इसकी रीडिंग लगा लेंगे, यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है। तो कुछ जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते थे। अब ये कहाँ कहाँ था, देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इधर से आप ये देखो कुछ इस तरीके का आपको इंडिया नज़र आएगा ना, बहुत रफली बना रही हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है या ये जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता था। ओके, चलो, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गई। इसके बाद आप देखो जो कुछ लोग थे उनमें से कुछ जो ट्राइब्स थी वो क्या थी, हंटर्स एंड गैदरर्स थे। अब हंटर्स और गैदरर्स आपको पता है जो शिकार करते थे और जो जंगलों की जो चीज़ें हैं अलग अलग उनको कलेक्ट करके उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे उन पर डिपेंडेंट था उनका जो भी सर्वाइवल था। ओके, इन मैनी रीजन्स ट्राइबल्स ग्रुप लिव्ड इन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो भी उनका सर्वाइवल था वो किस पर था, जंगलों के ऊपर। भाई जंगलों से वो क्या है,
पत्ते लेते थे, औषधियाँ लेते थे, फ्रूट्स लेते थे, औषधियाँ मतलब मेडिसिन जो हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे और फिर इनको क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनसे। ठीक है, तब यहाँ पे देखो फिर से एक ट्राइब दी गई, कॉन्ट्स। द कॉन्ट्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर रहते थे खोंड कम्युनिटी। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट एंड देन डिवाइडेड द मीट एमंग्स देमसेल्व्स, यानी कि जो लोग शिकार करने जाते थे वो शिकार करके लाते थे और अपनी पूरी कम्युनिटी में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। महुआ और जो साल के पौधे हैं, पेड़ होते थे, उनसे वो तेल निकालते थे और उस तेल में वो खाना पकाते थे। ओके, they used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local market. The local weavers and leather workers turned to the cons when they needed supplies of kusum एंड अदर थिंग्स, यानी कि जो लोकल मार्केट के जो छोटे मोटे व्यापारी थे, जब उनको इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ज़रूरत होती थी तो वो इसी कम्युनिटी यानी कौन सी कौन कम्युनिटी के पास जाते थे और बदले में जो कौन कम्युनिटी के लोग हैं उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। देखो, कॉन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर, यानी कि उस समय जो नेचुरल डाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों को यूज़ किया जाता था, तो ये जो ट्राइब थी कौन सी, कौन ट्राइब की, जो हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, वहाँ से जो उनके आसपास के एरिया के जो बिजनेसमैन होते थे, वेवर्स होते थे, जो जुलाहे हम जिसे कहते हैं, जो कपड़ा बुनने का रंगने का काम करते हैं, इन सब से क्या होता था, ये एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो कामकाज है वो चलता था, इनकी लाइफस्टाइल जो वो चलती थी। ठीक है, तो हमने देखा कुछ क्या थे, झूम कल्टिवेटर्स थे और कुछ क्या थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे। क्लियर। अब ये देखो, ये मैप में आपको दिया हुआ है, ये कौन कौन सी कम्युनिटीज देखो अलग अलग यहाँ पर दी गई हैं। लेट मी सी, गड्डीज जो हैं ये वन गुज्जर्स, शहरिया, भोटिया, भील, ये देखो इधर राजस्थान की तरफ हैं, वन गुज्जर्स हैं ये राठवा के अंदर, ये बेगाज, बंजारा, गोंड से सेंट्रल इंडिया के अंदर, बंजारा इधर भी हैं देखो। तो ये अलग अलग देखो, खासी, नागा ये ईस्टर्न पार्ट में है, नाजंग हैं, अपतनिनिशी हैं। तो ये अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, जो अभी हम इनमें से बहुत सारी आपके चैप्टर के अंदर आप फैमिलियर भी होंगे इन टर्म से, तो मैप के थ्रू आपको माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, कि कौन कौन से कम्युनिटीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप की जो स्किल्स होती हैं, मैप स्किल्स जो होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आता है आपका इसमें से आता है और बहुत ईजी है। एक बार आपने माइंड में अपनी इमेज सेट कर ली, बस वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। ओके, सो from where did these forest people get their supplies of rice and other grains? At the times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. तो ये जो एक्सचेंज है वो उनसे चलता था, जो भी चीज़ों की इनको ज़रूरत होती थी, जो बाहर के सप्लायर्स होते थे, जो पेजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे ये एक्सचेंज कर लिया करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस के एक्सचेंज में। ठीक है, उनके बदले में। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड. Some of them did odd jobs in the villages carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. तो जैसे इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं हर समय सीज़न एक सा हो, हर समय इनकी ज़रूरतें पूरी हों, तो इनमें से कुछ क्या करते थे, अर्निंग भी करते थे, यानी कि पैसा भी कमाते थे। कैसे कमाते थे, वो छोटे मोटे काम करते थे, जैसे सामान ढोने का काम हुआ, या जो बिल्डिंग बनानी है, सड़कें बनानी है, वहाँ पे जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी, उसमें मज़दूर की लेबर का काम करते थे, या खेतों में जो है लेबर का काम करते थे किसानों के साथ, पीजेंट्स के साथ में, तो इसके बदले उनकी जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स श्रिंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वॉन्टर अबाउट इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स, यानी कि जब उनकी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स की जो कमी हो जाती थी, यानी कि जब एक जगह से हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अभी एक पेड़ के हमने सारे आम खा लिए, तो हमें दूसरे पेड़ की तलाश में जाना पड़ेगा ना, अगर हमें आम ही खाने हैं तो यही चीज़ यहाँ पर थी। जो लोग एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया से जब कलेक्शन करके उस जगह को खाली कर चुके होते थे, क्योंकि नेचर है, पर्टिकुलर टाइम चाहिए ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बनने के लिए, तो उस टाइम पीरियड में वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे या लेबर के तौर पर काम करते थे, और जो पैसे मिलते थे उनके बदले में वो अपनी चीज़ें परचेज करते थे। ठीक है, बट मैनी ऑफ देम लाइक बेगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स, लेकिन इनमें से जो बेगाज एक कम्युनिटी थी जो सेंट्रल इंडिया की थी, वो अपने आप को अलाउड नहीं करते थे, वो बहुत रिलेक्टेंट थे दूसरों के लिए काम करने के लिए, यानी कि उनको ये लगता था कि हम नेचर से जुड़े हुए हैं, हम सिर्फ जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसी पर डिपेंडेंट है, हमें किसी दूसरे का काम नहीं करना, हमारे लिए जो प्रकृति है, जो नेचर है, वही हमारे सर्वाइवल के लिए है, बाकी किसी और का काम काज जब वो हमें नहीं करना। ओके,
कौन सी कम्युनिटी? बेगास की, ठीक है, दैट वाज रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए लेबर का काम जो है वो बिल्कुल नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ ए बेगा टू बिकम अ लेबर, यानी कि उन्हें अपने स्तर से नीचे का काम लगता था। भाई अब अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमें कोई लोअर काम करना पड़े तो हमें लगता है ना कि ये नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पर थी। जो बायगास थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को हंटर्स और गैदरर्स ही मानते थे और दूसरों के लिए काम करना वो अपने लिए अच्छा नहीं मानते थे। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। वही चीज़ बार बार आ रही है कि जो चीज़ें उनके आसपास के एरिया में प्रोड्यूस नहीं होती थी तो उनको उन्हें खरीदना पड़ता था। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और ये चीज़ें खरीदने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, और ये पैसा उन्हें कहाँ से मिलता था? जो दूसरे छोटे ट्रेडर्स थे या मनी लेंडर्स यानी कि जो उधार देते थे, उन पर ये डिपेंड होते थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइजेज। अब जो ट्रेडर्स थे यानी कि जो व्यापारी थे वो अपनी मन मर्जी की जो है प्राइस लगाते थे, चाहे वो कम है ज़्यादा है, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, है ना। उनका तो मेन टारगेट क्या था बिजनेसमैन का? प्रॉफिट कमाना। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा रेट पर जो है उनसे चीज़ें खरीदने को मजबूर थी और डिपेंडेंट थी, क्योंकि उन्हें वो चीज़ उस एरिया में नहीं मिलती थी, ठीक है। एंड मनी लेंडर्स जो थे, अगर वो पैसा ले तो जो मनी लेंडर्स जो उधार देते थे, जो इनको लोन देते थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर जो है वो रेट देते थे, ठीक है। तो वो पैसा चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स adding to what they earn, but the interest charged on the loans was usually very high. So for the tribals, market and commerce often meant debt and poverty. तो ये जो कम्युनिटीज़ थी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, तो उनके लिए जो बिजनेस है या जो पैसा अर्निंग है, कॉमर्स अगर हम देखें, लिखा है ना यहाँ पर कॉमर्स, मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेब्ट एंड पोवर्टी। तो कर्जे में फंस जाते थे, कर्जे में फंसेंगे तो क्या होंगे? गरीब होते चले जाएंगे वो, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें इनके लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी। They therefore came to see the moneylender and trader as evil, outsider and the cause of their misery. और इसीलिए ये जो मनी लेंडर थे या जो ट्रेडर थे, इनको ये एविल मानते थे, जो इनकी इस बुरी दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। समझ में आया आपको ये? चलिए आगे चलते हैं। सम हर्डेड एनिमल्स, अब हमने पढ़ा कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, कुछ गैदरर्स थे, हंटर्स थे। अब हम देखते हैं सम हर्डेड एनिमल्स, जो कुछ क्या करते थे? हर्डिंग करते थे, नहीं कि जानवरों को पालते थे, उनकी ब्रीडिंग करवाते थे, उनको रियर करते थे, ठीक है। लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। दे वर पैस्टरलिस्ट, चरवाहे थे वो, हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग वो जगह बदलते रहते थे, यानी कि सपोज जैसे पहाड़ी एरिया है, गर्मियों में ये ऊपर चले जाते थे और सर्दियों के समय ये नीचे आ जाते थे। या पर्टिकुलर एरिया में जो पास्चर लैंड है वो जानवरों ने चर ली, वो ख़त्म हो गई है, तो किसी दूसरे एरिया में जहाँ पर जानवरों के लिए चारा जो अच्छा उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उधर को शिफ्ट कर जाते थे, ओके। तो सीजन टू सीजन इनकी शिफ्टिंग चलती रहती थी। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड, दे मूव टू अनदर एरिया। The one Gujars and of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders। देखो अब यहाँ फिर से दो कम्युनिटीज आपके पास में आई हैं। वन गुजर्स कहाँ के थे? पंजाब, ठीक है, पंजाब की जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से बिलोंग करते थे। वहीं जो लबाडीज हैं ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के, क्लियर। द गड्डीज ऑफ कुल्लू, जो कुल्लू के हैं, कौन से हैं? ये गड्डीज हैं। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बकरवाल्स। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आ गई यहाँ पर अब आपकी। वन गुजर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पंजाब हिल्स से, ओके, एक नंबर आ गया ये आपका। फिर आगे लबाडीज कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आंध्र प्रदेश से, सेकंड ये आ गई आपकी, ओके। गड्डीज आ गए कुल्लू के, थर्ड, और बकरवाल्स आ गए कश्मीर के, तो फोर्थ तो ट्राइब्स आपकी यहीं आ गई। इसके अलावा जो आपने ऊपर पढ़ी है वो अलग होगी, तो आपको ये सब नोट करते चले जाना है। तो ये सब क्या करते थे? रियर्ड गोट्स। यू विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। डिटेल में जो है इन सभी ट्राइब्स के बारे में आप अपनी अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए some took to settled cultivation. So in previous chapter you have studied that how the settlement, how the permanent settlement was being started after the cultivation. जब ह्यूमन बींग को, अर्ली ह्यूमन बींग ने कल्टिवेशन सीखा, फसल उगाना सीखा, तो परमानेंट सेटल होना उसने सीख लिया। तो इसी तरीके से जो कुछ ट्राइब्स थी वो सेटल कल्टिवेशन को भी फॉलो करती थी। बिफोर द 19th century many from within the tribal groups had begun settling down.
एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि साल दर साल, एक साल में एक फसल ली, दूसरे साल में दूसरी फसल ली, वहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग जो है एक ही जगह पर रहकर उन्होंने जो है वो खेती करना सीखा। इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दे बिगिन टू यूज द प्लो, अब उन्होंने हल को यूज़ करना सीख लिया था। एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और धीरे धीरे जो ज़मीन का हिस्सा जिस पर वो खेती बाड़ी कर रहे थे उस पर उन्होंने अपना हिस्सा जो है, अपना अधिकार जो है वो गेन कर लिया था। इन मैनी केसेज लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल, यानी कि जो पूरी कम्युनिटी है, उस समुदाय है, उससे बिलोंग करती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, यानी कि शुरुआत में पहली बार जिसने उस लैंड को जो है यूज़ किया था या कल्टीवेट किया था या उसको साफ़ किया था, आप कह सकते हैं। पहले जंगल ही थे तो उनको साफ़ करके जब कल्टीवेशन शुरू किया था आधिकारिक तौर पर, वही जो है ओरिजिनल सेटलर जो थे वो थे। और धीरे धीरे जो इनके डिसेंडेंट्स थे, यानी कि इनके आगे आने वाली जनरेशन थी, वो सभी इनका अधिकार जो है ज़मीन पर माना जाता था। Therefore, all of them had rights on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs and other followers. अब इसमें से जो हम एक क्लैन की बात करें, ग्रुप हम कह सकते हैं, तो सभी लोग इक्वल होते थे, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ लोगों को जो है ज़्यादा पावर दे दी जाती थी, क्योंकि जो है हायरार्की जो है वो ज़रूरी है ना, एक मुखिया होना ज़रूरी है। तो कभी कभी जो है कुछ लोगों को ज़्यादा पावर दे दी जाती थी और बाकी के जो लोग होते थे वो इनके फॉलोवर्स होते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स, और जो पावरफुल मैन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, इनकी पावर जो है वो बढ़ती चली गई। तो जो पावरफुल मैन थे, जो हम इकोनॉमिकली देखें या सोशली देखें, जो हायर रैंक पर बिलोंग करते थे, वो अपनी ज़मीनों को दूसरे लोगों को, छोटे लोगों को, अपने फॉलोवर्स को क्या करते थे, उधार दे देते थे। ठीक है, खुद कल्टिवेशन ना करके वो क्या करते थे, उन लोगों को उधार दे देते थे और वो उस पर खेती बाड़ी करते थे। British officials saw settled tribal group like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers और shifting cultivators. अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स थे ये बहुत ज़्यादा सिविलाइज थे और जो हैं मतलब जो इनकी लाइफस्टाइल थी, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं या हंटर्स गैदरर्स हैं उनसे बहुत बेहतर थी, क्योंकि जब वो एक जगह पर रह रहे हैं, फिक्स है उनकी सारी चीज़ें, प्रॉपर रूल बने हुए हैं, सिस्टम बना हुआ है, तो ये ज़्यादा हम कह सकते हैं सिविलाइज थे। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसीडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज, क्योंकि जो जंगलों में रह रहा है वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, उसको जो सिविलाइज्ड होना नहीं पता, उसको भी सिविलाइजेशन क्या होता है, सेटलमेंट उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको ये लगता था कि जो हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, उनको सेटल करना और उनको सिविलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने जो आगे के जो है सिस्टम उसको देख रहे थे, ठीक है, कि किस तरीके से इन लोगों को एज अ स्लेव वो यूज़ करें, एज अ लेबर वो यूज़ करें। क्लियर? तो आज हम यहीं पर अपना चैप्टर रोकेंगे। आई हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स दैट हाउ देयर लाइफस्टाइल वाज, ट्राइब्स की जो थी लाइफस्टाइल क्या थी, क्या क्या तरीके से वो अपना जो है जीवन चला रहे थे, अपना सर्वाइवल कैसे चल रहे थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एनी हाउ इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।